everyone. In this video lecture, we are going to discuss about the topic food preservation. This video is in continuation with part 1 and part 2 of the chapter Microorganism Friends or FO. In this video, we shall discuss about the definition of food preservation, what are the objectives of food preservation, and also various methods by which food preservation can be done. Let's move ahead. Food preservation. So basically it is a technique to prevent food spoilage, food poisoning, and also microbial contamination of food. So now contamination might be new term for many of you. कंटामिनेशन का मतलब होता है किसी भी तरह की अशुद्धता का आना. There can be microbial contamination, there can be abiotic contamination. Abiotic contamination में chemicals के का contamination, chemicals का contamination हो सकता है. Now in food preservation we are at times avoiding microbial contamination. Okay. So food preservation is one of the methods to protect any kind of microbial growth, right? जितने भी unwanted microorganisms हैं, we need to definitely protect our food from all those microorganisms. Why? Because they can harm our body, right? As soon as the food is produced, we try to store it by using various methods. मम्मा जब किचन में खाना कुक कर लेती हैं उसके बाद में डेफिनेटली शी इज़ नॉट लीविंग द फूड ओपन नहीं रखती हैं, उसको किसी और कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देती हैं सो दैट इट कैन बी कवर्ड अप यूजिंग अ लिड से कवर करने के बाद शी इज़ बेसिकली प्रोटेक्टिंग द फूड फ्रॉम द इंसेक्ट्स, फ्लाइज और एनी काइंड ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई इज शी प्रोटेक्टिंग द फूड? And for how much time this kind of protection would be helpful in protecting the food? So she is protecting the food so that any infectious microorganism should not enter into the food. अगर microorganism enter कर गया, वो हमारी body में through food ingest हो गया, तो it might cause diseases. नेक्स्ट थिंग, इस फूड को कितने टाइम तक हम ऐसे ही प्रिजर्व करके रख सकते हैं? तो दिस इज़ वन ऑफ द शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन मेथड. बहुत ज़्यादा टाइम तक हम ऐसे उस फूड को प्रिजर्व नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि सिर्फ माइक्रोबियल कंटामिनेशन की वजह से नहीं, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर की वजह से भी वो फूड ख़राब हो सकता है. तो in this video, for the food preservation techniques or the methods of food preservation, we would discuss the method that help us in preserving food for longer time. Okay, let's move ahead. Let's discuss what are the various objectives of food preservation. First objective is to prevent the microbial contamination, whether they are bacteria, viruses, fungi. We need to protect our food from any kind of microbial growth. Next thing, we need to protect our food from the pathogens. Pathogens are the disease causing microorganisms. ऐसे microorganisms जो human beings में, animals में या plants में किसी भी तरह की disease cause करने की ability रखते हैं. Next, we need to minimize the spoilage and food poisoning. Spoilage को भी minimize करके रखना है, food को हमें basically ख़राब नहीं होने देना है. Meanwhile, we need to stop food poisoning. अगर हमारी बॉडी में food poisoning हो गई तो it can be fatal in severe cases. जितने severe cases हैं, ज़्यादा serious conditions हैं, उसमें food poisoning can be fatal. Let's move ahead and discuss the methods of food preservation. So we are going to discuss 8 methods of food preservation in this video. Let's look into them. First one is chemical methods. We can add certain chemical preservatives into the food so that its shelf life can be increased. Then we would discuss about food preservation by common salt, by sugar, and by oil and vinegar.
Then we would focus on heat and cold treatment, and to be more precise, about pasteurization. Then we would discuss about dehydration, storage packaging, and radiation of the food items. Let's look into each of them one by one. Let us discuss the use of chemical preservatives or chemical methods. So substances can be added to the food for preserving them, and all these chemical preservatives would check the growth of microorganisms. They would stop the microbial growth in the food item. The synthetic food preservatives, it includes vinegar, sodium benzoate, and sodium metabisulfate. So vinegar is abundantly available in Indian kitchens now, right? Indian kitchens में vinegar is available. ये आपने अपने घर में काफ़ी बार देखा होगा. सोडियम बेंजोएट इट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, और आप में से शायद बहुत सारे लोग सोडियम बेंजोएट को ऑलरेडी अपनी लाइफ में यूज़ करते हो. सोडियम बेंजोएट यूज़ हो सकता है इन सॉस प्रिपरेशन. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मानते हैं कि घर पे प्रिपेयर की हुई चीज़ें ज़्यादा हेल्दी होती हैं, राइट? तो दे माइट बी प्रिपेयरिंग टोमेटो केचप्स एट देयर होम. टोमेटो केचप्स में विद सोडियम क्लोराइड, जो आपका टेबल सॉल्ट है, उसके साथ सम अमाउंट ऑफ सोडियम बेंजोएट इज मिक्स्ड एंड एडेड विद विनेगर, so that the ketchup which is prepared at home can be saved up to 6 months. अराउंड 6 महीने के लिए हम उस टोमेटो केचप को सेव कर सकते हैं. देन सोडियम मेटाबिसल्फेट इज ऑल्सो अदर काइंड ऑफ केमिकल which can be used for the preservation of food. Let's move ahead on the topic preservation by common salt. So common salt can arrest the growth. It can kill the microorganism because of dehydration. Let's split the term and get the meaning out of it. It consists of two terms. First one is de and other one is hydration. डी जिस भी वर्ड के फ्रंट में एज प्रिफिक्स यूज होता है, उसका मतलब दी अदर पार्ट हैज़ बीन रिमूव्ड इन द प्रोसेस. दैट मीन्स द वर्ड हाइड्रा विच स्टैंड्स फॉर वाटर, किसी भी प्रोसेस में अगर हम लोग वाटर को रिमूव कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन. तो कॉमन सॉल्ट की प्रेजेंस में या फिर शुगर की प्रेजेंस में the food item or any object, it loses the water. Dehydrate हो जाता है, पानी उसमें से eliminate हो जाता है. And dehydration is one of the major reasons for checking the growth of microorganisms. Microorganisms such as bacteria, fungi, yeast, protozoa, they cannot grow without water. उन सबको water चाहिए अपनी growth के लिए. So you might have seen वेरियस टाइम कोल्ड स्टोरेज में आपने शायद इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि मीट या फिशेस को जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र करना होता है, तो कोल्ड स्टोरेज में आइस के साथ दे आर ऑल्सो एडिंग सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट जब उसमें डालते हैं तो आइस की प्रेजेंस की वजह से वो ज़्यादा टाइम तक चल पाता है या ख़राब नहीं हो पाता ऑब्जेक्ट या फिर मीट और फिश. मीनवाइल जब उसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो एफिशिएंसी हैज़ बीन इंक्रीज्ड. जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को बड़े इजीली चेक किया जा सकता है. नेक्स्ट वन इज़ प्रिजर्वेशन बाय शुगर. जैम्स, जेली, सॉसेस, बहुत सारे जो पैक्ड फूड आइटम होते हैं, अगर आप उन पे क्लियरली उनके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यू वुड फाइंड शुगर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट. हमें जब उनको टेस्ट करते हैं तो नहीं लगता कि यार इसके अंदर शुगर की क्वांटिटी है, बट स्टिल शुगर इज़ प्रेजेंट एंड दैट इज़ बिकॉज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इट. कैसे चेक करते हैं? बिकॉज शुगर इज़ अ गुड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट, और अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया या मॉइस्चर रिटेन कर लिया तो उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो इन टू दैट. लेट्स मूव अहेड. प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर.
सो ऑयल इज़ बीइंग यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव सिंस एजेस. आप सब ने अपने घर में देखा होगा मम्मा अचार स्टोर करके रखती हैं. मे बी शी इज़ प्रिपेयरिंग इट एट होम और मे बी वी आर गेटिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट. दोनों ही कंडीशन में ऑयल, अ लेयर ऑफ ऑयल इज़ देयर ऑन द टॉप ऑफ पिकल. अचार के ऊपर जब तक वो ऑयल की लेयर रहती है तब तक वी आर एश्योर्ड कि भाई ये अचार ख़राब नहीं होगा. When at times when mama asks you to take out pickle from that bottle, you might have noticed she saying कि भाई अचार निकालने के बाद ना उसको थोड़ा सा अंदर प्रेस कर देना, ऑयल की लेयर के बाहर अचार नहीं आना चाहिए. दैट मीन्स शी इज़ आस्किंग यू कि एयर और पिकल के बीच में जो ऑयल की लेयर है प्लीज़ उसको मेंटेन करना, बिकॉज ऑयल एंड विनेगर दे डोंट प्रोवाइड सूटेबल कंडीशन फॉर द बैक्टीरिया टू लिव इन. अगर बैक्टीरिया को ऐसी सूटेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली वो उस एरिया में ग्रो नहीं करेगा. लेट्स मूव अहेड. प्रिजर्वेशन बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, और दिस मेथड इज पॉपुलरली नोन एज pasteurization. Now the question arises, why the heat and cold treatment and why this method is known as pasteurization. Pasteurization is this method is named after the scientist who discovered this, Louis Pasteur. He discovered this method to store milk and other liquid products. In this method, heat and cold treatments are given one after the other to the liquid products. जितने भी liquid products हैं जिनको sterilize करना है उनको heat और उसके just बाद cold का treatment दिया जाता है, so that we can avoid the growth of microorganisms in them. So bacteria, they can be destroyed by heating. जितने भी बैक्टीरिया मिल्क में या लिक्विड प्रोडक्ट्स में अवेलेबल हैं उनको हीट करके उन बैक्टीरियाज को किल कर सकते हैं. नाउ इफ it must be heated up to 62 degrees Celsius for 30 minutes or up to 72 degrees Celsius for 15 minutes, for 15 seconds, and just after this it is followed by cooling. हीट, जब हायर हीट में हम लोग किसी भी लिक्विड को रखते हैं तो देर आर चांसेस इट माइट लूज इट्स प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास फ्रूट जूस है, फ्रूट जूस की पैकेजिंग करनी है, तो ये चांसेस हो सकता है कि वो अपनी टेस्ट या और कलर ऐसी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर दे. कंज्यूमर्स कभी भी ऐसे ड्रिंक्स नहीं परचेज करेंगे जिसका टेस्ट ख़राब हो चुका है या जिसका कलर ख़राब हो चुका है, डेफिनेटली. ठीक है, तो वैसी कंडीशन में 72 डिग्री सेल्सियस पे बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, सिर्फ 15 सेकेंड्स के लिए अगर हम किसी भी लिक्विड को रखते हैं तो डेफिनेटली टेस्ट वुड बी मेंटेन्ड, इट्स टेक्सचर वुड बी मेंटेन्ड, एंड इट कैन बी सेव्ड फ्रॉम माइक्रोबियल कंटामिनेशन. नाउ दिस हीटिंग इज़ डन एट हाई प्रेशर. प्रेशर के साथ हीट करते हैं और हीटिंग के जस्ट बाद वी अलाउ द लिक्विड टू कूल डाउन क्विकली. हीट शॉक सडन ट्रीटमेंट होता है एक साथ. ऐसा नहीं है कि हीट करने के बाद इसको छोड़ दिया कि रूम टेम्परेचर पे कूलिंग हो जाएगी. नो. ओके, सो दिस इज अबाउट पास्चराइजेशन. लेट्स मूव अहेड, विच इज डिहाइड्रेशन. वी हैव स्प्लिटेड द टर्म एंड already got the meaning. D is for removal, hydration hydra means water. The process of removal of water from any substance is called dehydration. Bacteria, fungi, or any other microorganism, they cannot live in the absence of water. So fruit, vegetables, meat, fishes, etc., they are preserving them either by drying them under the sun or air or by heating them. किसी भी तरीके से हमें बेसिकली उनमें से वाटर के कंटेंट को एलिमिनेट करना है. नाउ देयर इज वन सच प्रॉपर्टी ऑफ now dehydration can also be used in various other methods. For example, it is helpful in stopping the yellowing of fruits. If
the food is dipped in metabisulfate and then dried. We need to take about 0.5% solution of metabisulfate and then we can simply dry it under the sun. इसकी वजह से yellowing of fruit is stopped or checked. Let's move ahead, which is storage and packaging. Also we can call this term as canning. किसी भी फूड आइटम को स्टोर करना है, उसको पैक करना है, वी कैन, इफ इट इज़ स्टोर्ड इन कैन्स, टिन या कैन में अगर उसको स्टोर कर रहे हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज कैनिंग. सो द फूड आइटम्स विच आर स्टोर्ड और सील्ड in cans or plastic wraps, they can their shelf life can be increased up to 1 to 5 years. अगर प्रोसेसिंग प्रॉपर हुई है फूड की, उसकी पैकेजिंग और स्टोरिंग प्रॉपर थी, तो उस टाइम पे हम लोग किसी भी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट. तो बिफोर कैनिंग एनी फूड प्रोडक्ट, इट नीड टू बी एंश्योर्ड दैट इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी माइक्रोबियल कंटामिनेशन. कोई भी माइक्रोब उस पर्टिकुलर फूड आइटम पर नहीं होना चाहिए. अगर पैकिंग के ड्यूरेशन में या पैकिंग के बाद भी उसके ऊपर माइक्रोबियल अटैक होगा तो वो फूड प्रोडक्ट पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा. ओके, तो बिफोर पैकिंग एनी फूड प्रोडक्ट, इट इज़ हीटेड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर अबाउट 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes के लिए उसको हाई टेम्परेचर विच इज़ 121 डिग्री सेल्सियस and high pressure which is 20 bar, it need to be heated up. इस हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे हीट अप करने से क्या होता है, जितने भी बैक्टीरिया और उनके स्पोर्स होते हैं दे कैन बी ईजिली किल्ड. नेक्स्ट, जो फूड प्रोडक्ट इस स्टेज में पैक होते हैं, मीन्स जस्ट आफ्टर द स्टरलाइजेशन, उनकी शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है. प्लस इफ़ वी आर एडिंग प्रिजर्वेटिव्स in the food item at this stage, then also shelf life can be enhanced. Let's move ahead with the next topic, which is radiation. कभी कभी ऐसा होता है कि फूड आइटम हमने स्टेरलाइज कर लिया, हमने जो कैन या टिन थे उनको स्टेरलाइज कर दिया, लेकिन पैकिंग के टाइम पे हो सकता है कहीं से माइक्रोबियल ग्रोथ या कोई भी माइक्रोब या उसका स्पोर कैन में या फूड आइटम में आ जाए. ठीक है, अब स्टेरलाइजेशन तो हम लोग कर चुके हैं. माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल, वी कैन नॉट सी देम यूजिंग आवर नेकेड आइज. तो होता क्या है, आफ्टर पैकिंग द फूड आइटम इज इरेडिएटेड और द पैक्ड फूड आइटम इज इरेडिएटेड. रेडिएशन उसके ऊपर डाली जाती हैं सो दैट एयर टाइट कंटेनर जिसके अंदर वो पैक हुआ है प्लस द कंटेनर, द फूड आइटम, एवरीथिंग इज़ बीइंग स्टरलाइज्ड वंस अगेन. रेडिएशंस के थ्रू उसको निकालते हैं. तो रेडिएशन से निकालने के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब उसमें प्रेजेंट हैं बाय चांस, जो उसके अंदर रह गए थे वो, और जो न्यू जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब उसके अंदर प्रेजेंट हैं वो, उनकी डेथ हो जाएगी. प्लस न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे वोंट बी एबल टू एंटर द पैकेजिंग because of maybe tetra. पैकेजिंग के बाद रेडिएट करने से द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन द फूड दे वुड गेट डिस्ट्रॉयड एंड न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म वोंट बी एबल टू एंटर द पैकेजिंग. So this was one of the newest method. It is cheaper, but still it is not widely used in various industries. This is it for this video. Topic for our next video would be nitrogen fixation and nitrogen cycle. Thank you.